لیکن آپ نے حوالہ ابو داؤد شریف کا دیا ہے نا؟ ابو داؤد میں حدیث صحیح نہیں ہے، صاف ہے نا؟ ہاں صاف ہے. حدیث صحیح ابو داؤد میں نہیں ہے، شیخ البانی نے دیا ہے، جس کو آپ نے حوالہ دیا ہے ابو داؤد شریف. ٹھیک ہے. آگے ہے یہ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ. اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد بھی آپ نے صحیح لکھا ہے. تو یہ صحیح ابن ماجہ میں ہے؟ نہیں ابن ماجہ میں نہیں ہے نا. یہ بھی صحیح ابن ماجہ میں نہیں ہے. کس نے لکھا ہے یہ؟ شیخ البانی. شیخ البانی. ٹھیک ہے. یعنی ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث صحیح یا صحیح نہیں ہے، شیخ البانی نے لکھا تھا، وہ آپ نے نقل کر دیا. میں نے کیا سمجھ کر نقل کیا کہ انہوں نے صحیح مانا ہے تو ہم بھی صحیح مان لیں. جی بولیے بولیے. یہی سمجھ کر نا. نہیں ہاں. جو حدیثوں کی چیک کی گئی، حدیثوں کو سند جب دیکھی گئی تو اس صورت میں ہم نے سندوں کو دیکھ کر صحیح کا حکم. آپ نے بھی صحیح کا حکم لگایا سندوں کو دیکھ. ٹھیک ہے. اچھا تیسری عبارت یہ حدیث ہے ترمذی شریف. ٹھیک ہے. ترمذی شریف آپ نے حدیث نقل کی ہے، اور حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی کا جو مارک ہے وہ پورا آپ نے نقل کیا ہے. تو وہ یقال ہوا کیسی تک ہے کہ اور آگے عبارت ہے. جی بولیے. وَيُقَالُ ہوا قیسن ہی تک ہے کہ اور آگے عبارت ہے. اور آگے عبارت. آگے عبارت ہے. وہ عبارات آپ نے کیوں کاٹ دیا؟ وہ عبارت میں دیکھا نہیں. عبارت دیکھا نہیں تھا، میں جلدی بازی میں دیا تھا. علامہ البانی نے جو لکھ دیا اس نے آپ کو دیکھ لیا، اور جو امام ترمذی خود کی قول کے بعد میں صحیح کا حکم لگایا کیا؟ یہ بات ہے میرا. وہی تو پوچھنا ہے کہ جو ترمذی میں تھا اس کو آپ نے کاٹ دیا، اور ایک دو لفظ نہیں. غلطی ہوتی ہے تو ایک دو حرف میں، ایک دو لفظ میں. آپ نے یہاں سے ٹوٹل قیس ابن فہدین. ٹھیک ہے. اور آگے عبارت کیا ہے؟ پڑھیے. وَإِسْنَادُهُ هَذَا الْحَدِيثِ. اسنادہ نہیں ہے، صحیح پڑھیے. وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. هذا الحدیث کیسے ہوگا؟ آپ کو عربی عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی ہے. وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. ہاں. وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. کیا مطلب ہوا؟ اور یہ حدیث متصل سند سے ثابت نہیں ہے. جی. تو متصل سند سے ثابت نہیں ہے. آگے بڑھیے. کیوں؟ محمد بن ابراہیم التیمی لم یسمع من قیس. ہاں. اس وجہ سے کہ محمد بن ابراہیم التیمی کا سماع قیس سے نہیں ہے. اور ہاں ہو گیا روایت پوری بحث. امام ترمذی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے کہ منقطع ہے؟ منقطع. ٹھیک ہے. آپ نے اتنی بڑی غلطی کی کہ جو امام ترمذی جس حدیث کو منقطع کہہ رہے ہیں وہ عبارت ہی آپ نے اڑا دیا پوری. تو میں کہاں ثابت کیا ہوں کہ یہ متصل روایت ہے؟ ٹھیک ہے. آپ ثابت نہیں کر رہے ہیں متصل، لیکن آپ صحیح کا حکم لگا رہے ہیں. اس
में तो सही का हुक्म नहीं लगाया। तो रिवायत तो एक ही है ना, ये है या अबू दाऊद की है या आपके ये रिवायत? देखिए रिवायत सब आप देख लीजिए। मोहम्मद इब्न इब्राहिम कैस इब्न अमर, मोहम्मद इब्राहिम कैस इब्न अमर, मोहम्मद इब्न इब्राहिम कैस इब्न अमर, इसमें भी मोहम्मद इब्न इब्राहिम कैस इब्न अमर। चारों रिवायतें में देख लीजिए आप, मोहम्मद इब्न इब्राहिम कैस इब्न अमर है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपने हदीस की किताबों में गड़बड़ से काम लिया है। जो इबारत नहीं है हदीस सहीहून, आपने उसको ठूस दिया है, और जो इबारत है नहीं हूँ मैं ठूसने वाला कौन होता हूँ? जो मुहद्दिसीन ने, तो आप तो तकलीफ करते हैं फिर नासिर अलबानी की। नासिर अलबानी की नहीं, तो इसके आपने नहीं ठूसा। इमाम तिरमिजी ने लिखा ना कि लैसा बिमुत्तसिल, इसको आपने क्यों नहीं नकल किया? ये हदीस मुत्तसिल नहीं है। तो इस गलती को नहीं, उस गलती को मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मान रहे हैं आप कि मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी ने अहमद कैस इब्न अमर से नहीं सुना, तो ये हदीस मुनक़ते हो गई। और हदीस मुनक़ते क्या होती है? तुम्हारा मुंह तो हटाओ यहाँ, मेरा भी लेते रहो, नहीं होती, ज़ईफ़ होती है। आपको याद है आपके 3 जगह आपके सभा में लिखा हुआ है कि हदीस मुनक़ते इनक़िता की वजह से ज़ईफ़ होती है। यहाँ भी आपने लिखा ये रिवायत इनक़िता की वजह से ज़ईफ़ है, ये रिवायत इनक़िता की वजह से ज़ईफ़, ये रिवायत इनक़िता की वजह से, ठीक है। और ज़ईफ़ हदीसों से इस्तिदलाल करने वाले का हुक्म आपने क्या लगाया है कि सही हदीस के मुकाबले में मुनक़ते रिवायत से हुज्जत पकड़ना इंसाफ का खून करने के मुतरादिफ है। तो आपने तो इंसाफ का खून कर दिया। अब मैं तो कहता हूँ कि आपने उलमाए अहले हदीस को तमाम का आपने खून कर दिया कि आप मुनक़ते रिवायत को नकल कर रहे हैं और इमाम तिरमिज़ी हुक्म भी लगा रहे हैं, और उस इबारत को आप चोरी कर रहे हैं, काट रहे हैं। चोरी की बात नहीं है शेख यहाँ पे। फिर चोरी की अगर 1-2 लफ्ज, अगर मैं सुनिए मैं कह रहा हूँ, 1-2 लफ्ज होता तो मान ली जाती। पूरी लाइन के लाइन आपने उड़ा दिया। पूरी लाइन की बात नहीं है, मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि हनीफ भाई आए थे और जल्दीबाजी में मैं निकलने वाला था। नहीं मामला मैं क्या बोला था, जिया भाई सोच समझ के और अच्छे से देना और सही देख के देना, और आपने बोले थे बिन फिक्र होके लेके। मैं बोला था कि हाँ लेके जाइए आप अभी बोल रहे हैं कि हमने तहकीक किया, और आपकी तहकीक क्या हुई जबकि सारे हदीसों के बारे में खुद ये हुक्म लगा रहे हैं कि मोहम्मद इब्न इब्राहिम ने कैसे नहीं सुना। अच्छा, अब यही हुक्म जो है आपके भी आलिम लगा रहे हैं। अशरफ सिंधु साहब की किताब हाजिर है, यहाँ आप देख लीजिए क्या लगा रहे होगा बता। आपके आलिमी चलाई, आपकी आलिमी किताबें। हाँ वो आलिम की किताब, उनकी क्या बोलेंगे। जैसे ये हवालजात हैं पूरे हदीस की किताबों के, अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा, दारक़ुतनी, आपने चारों किताबों में लिखा है, ठीक ना। और आगे देखिए, इन तरीके मोहम्मद अमजद इनकैस कारण इस सनद में इनक़िता है। चलिए ठीक है। इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है क्योंकि मोहम्मद इब्न इब्राहिम का कैसे समान नहीं है। जो तिरमिजी इबारत नकल कर रहे हैं उस तिरमिजी का ये भी बोल। यहाँ पे ये इब्न खुज़ैमा और दारक़ुतनी से मुत्तसिल सनद के साथ साबित है। आप वो सनद देंगे तो उसमें भी ज़ौफ़ है। तो ये आप सोच सकते हैं कि सही जो सिहाए सित्ता की किताबों हैं उनकी रिवायतों का जब ये हाल है तो फिर सही इब्न खुज़ैमा और फला किताबों का क्या हाल होगा? सियाह सित्ता ही सिर्फ काबिल हुज्जत मानी जाएंगे। हाँ हम कह रहे हैं तो सही सियाह आपने जो दिया है, आपने 4 किताबों का दिया है, अबू दाऊद, इब्न माजा, तिरमिजी, दारक़ुतनी, और चारों हदीसों में वही सनद है मोहम्मद इब्न इब्राहिम अन कैस इब्न अमर, ठीक है। और एक किताब में तो साफ हुक्म लगा दिया है कि ये सनद मुत्तसिल नहीं है। अब दूसरे मुहद्दिसीन को भी देखा जाएगा। हाँ, जैसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं, मुस्तदरक हाकिम के अंदर इमाम हाकिम भी सियाहत का हुक्म लगा रहे हैं, इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह भी सियाहत का हुक्म लगा रहे हैं। इसी सनद को वो दूसरे मुत्तसिल सनद जो रिवायत मुत्तसिल सनद इससे भी कहीं ज़ईफ़ है। वो
اس کے اندر بھی انقطاع ہے. تو وہ کس ایک لنگڑا کو سہارا دینے کے لیے ایک صحت مند آدمی سہارا دے سکتا ہے. دو لوگ پیر سے جو لنگڑا ہو کیا سہارا دے گا اس کو؟ اب دیکھیے اب یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس کو صرف وہ منقطع بتا رہے تو متصل اس کا بتانے والے بھائی امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی نہیں حکم لگا اس بارے میں. نہیں حکم موجود ہے اس کے بارے میں. ہاں سنن ابی داؤد کے اندر یہ باتیں موجود نہیں ہے کہ متصل ہے کہ مرسل ہے. ماشاء اللہ آپ کی تحقیق بہت اچھی ہے اونچی ہے. سنیے آپ دوسری روایت جو آپ کہہ رہے ہیں قال ابو داؤد روا عبد ربی و یحییٰ ابن سعید حادی الحدیث مرسلن. آپ بولتے ہیں حکم نہیں لگایا ہے. یہ کس طرح سے دوسرا جو آپ نام لے رہے ہیں عبد ربی یحییٰ ابن سعید حادی الحدیث مرسلن، مرسل ہے یہ روایت. اسی کے نیچے تو ہے. جس طرق سے تھوڑا آ رہی ہے سچ. آپ دوسرے طرق کا نام لے رہے ہیں نا حضرت. وہی دوسرے طرق کو تو میں بتا رہا ہوں وہ بھی مرسل ہے. تو وہ روایت تو کہاں ہے؟ وہ روایت تو آئے تب تو سامنے، روایت تو سامنے آئے تب تو. قال ابو داؤد روا عبد ربی و یحییٰ ابن سعید نقل کر رہے ہیں کہ آپ نہیں دوسرے راوی لوگ جو یہ ہیں سند ہیں تو کس روایت کے بارے میں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ بھی تو ثابت ہو جائیں کون کہ سا؟ اس صورت میں یہاں پہ وہ روایت کہاں پہ ذکر ہے؟ آپ جتنی سند لائیں گے جی قال سفیان کان عطا ابن ابی رباح یحدث بهذا الحدیث عن سعید ابن سعید، ہاں اور پھر وہی ابو داؤد اسی روایت کو بول رہے ہیں کہ یہ سند جو ہے مرسل ہے. ہاں آگے کیا آپ ہے؟ جتنے حدیثوں میں چھانیں گے جی وہ رجل صحابی کے بارے میں جو روایت ان سے ان کے بعد والوں کو سما ثابت ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے صحیح ثابت کریں گے؟ آپ زبردستی. تو آپ بولیے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا خیال آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے صریح طور پر دھوکہ دینے کی کوشش کی. ابو داؤد کا نام لے کر حدیثوں صحیح ہوں، ابن ماجہ کا نام لے کر کے صحیح ہوں، اور ترمذی جہاں بتا رہے ہیں کہ اسناد هذا الحدیث لیس بمتصل، اس کو آپ نے چوری کر لیا، پوری اڑا دیا آپ نے. ترمذی کی ذرا آگے عبارت پڑھیے. کیا ہے آگے عبارت؟ عبارت پڑھیے آپ دیکھیے ذرا ہاں آگے عبارت پڑھیے. بتائیے ہم کو کیا ہے آگے. پیپر ہے ہم پیپر جی جی کیا آگے عبارت ہے آپ کو پڑھ کے سمجھائیے، بتائیے ہم کو. ہاں مولانا اس سے پڑھ لو اچھے کے سامنے نکالنے کی ضرورت نہیں. دیکھو بھائی کوئی بھی دھوکے میں نہیں آئے گا. ان کے حدیث کے صحیح کہنے یا غلط کہنے میں کوئی بھی دھوکے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کو بھی انہوں نے دھوکے میں رکھا. حدیث صحیح کہہ دیا جبکہ نہیں ہے، اور ترمذی میں اسناد هذا الحدیث لیس بمتصل کہ یہ حدیث متصل نہیں ہے. وجہ بھی بیان کرے اس کو انہوں نے کاٹ کے پھینک دیا. یہ حدیث کی کتابوں کے ساتھ ان کا ضرورت. حدثنا احمد بن عبدہ الزبی حدثنا عبد العزیز بن محمد بن ان قدامہ قدامہ بن موسیٰ عن محمد بن الحسین عن ابی علقمہ عن یسار مولا بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین. اس کے بعد یہ بات بتا رہے امام ترمذی ومعنى هذا الحديث انما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعة الفجر. وہاں ہے یہ روایت ہم کو بتائیے ترمذی میں باب لا صلاة بعد طلوع الفجر الا رکعتین. اس باب کے اندر دیکھیے یہ پانچویں حدیث دے گا مولانا. ہاں کیا باب ہے؟ لا صلاة بعد طلوع الفجر الا رکعتین. جلد 1 ہے. ہاں جلد 2 ہے. جلد 2 ہاں جلد 2 میں
जिल्द दुआम में नमाज क्या बाब कहाँ है सो बताइए आप ही खोल के। बाप लिखे ना ला सलात बाद तुलुल फज्र इल्ला रकातैन। बाप के हिसाब से देखिए। सब अबाबुल करात है, अबाबुल ईमान है, अबाबुल इल्म है, पहले जिल्द में अबाबुल देखिए। जोद है। दूसरी जिल्द में कहाँ है? पहले जिल्द में देखिए। क्या है? ला सलात बाद तुलुल फज्र इल्ला रकातैन। हाँ बोलिए, पढ़िए पढ़िए, क्या है बोलिए। रिवायत मिल गई कि नहीं? बाप पढ़िए, बाप। बाब ला सलात बाद तुलुल फज्र इल्ला रकातैन। हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। अब आपने पढ़ दिया। हाँ जी सुनिए, काला अबू ईसा हदीस इब्न उमर हदीसुन गरीबुन जी ला नारिफु इल्ला मिन हदीस कुदामा इब्न मूसा। जी हाँ हाँ जी। व रुविया अन्हु गैर वाहिदिन व हुवा मा अजमा अलैहि अहलुल इल्म करिहु अन युसल्ली रजुलु बाद सला। ये तो हुक्म लगा रहे हैं नमाज पढ़ने का या ना पढ़ने का। हाँ। रिवायत का हुक्म लगा दिया इन्होंने कि हदीसुन गरीबुन, ये भी जो है गरीब पूरी हदीस ज़ईफ़ पढ़ना हदीस। चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? काला अबू ईसा हदीसुन इब्न उमर हदीसुन गरीबुन ला नारिफु इल्ला मिन हदीस कुदामा बिन मूसा। हदीस जो अबू ईसा बता, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं हाँ। कि मुझे जो ये हदीसें मिली हाँ। इनके अलावा किसी से नहीं। कुदामा ये इब्न साबित कर रहे हैं। कुदामा इब्न मूसा से। मूसा। अब और कुदामा इब्न मूसा भी ज़ईफ़ है। तो ज़ईफ़ बताएंगे तब तो। आप जो बता रहे हैं इमाम तिरमिज़ी का ये कौल नहीं बता रहे हैं। ये हदीस हाँ। गरीब किसको बोलते हैं? हदीसुन गरीबुन। तो हदीसुन गरीबुन कहा गया यानी तन्हाई। किसी रिवायत को अगर कोई अकेला फर्द रिवायत करे हाँ। तो उसको इस वजह से बता रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी आगे खुद बता रहे हैं इल्ला मिन हदीस। वजह क्या? वजह इस बुनियाद पर कि ये हदीस कुदामा बिन मूसा के तुरुक से ही मुझे मिली है। और आगे बता वरावा, उसके बाद अन गैर वाहिदिन, इनके अलावा किसी के तुरुक से इनको रिवायतें नहीं मिली है। और उसके बाद होता है माजमा अलैहि अहलुल इल्म, अहलुल इल्म का जिस पर इजमा है। करिहु, वो लोग नापसंद करते थे अन युसल्ली रजुल, के आदमी नमाज पढ़े बाद तुलुल फज्र, फजर के तुलु होने के बाद इल्ला रकातल फज्र, सिवाय 2 रकात फज्र की नमाज की। ये तो तिरमिजी हाँ। पढ़ने ना पढ़ने का हुक्म बता रहे हैं ना। हाँ तो आप क्या बता रहे हैं इस बारे में? रिवायत जो आप सही होने का जो दावा करते हैं, हमारी बहस तो उससे। तो वो जो आप इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो हुक्म तस्लीम कर रहे हैं, क्या? तो इस वजह से मैं ये भी बता रहा हूँ कि पढ़ी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्यों बता रहे हैं? इमाम तिरमिजी तो सारे अइमा के अकवाल नकल करके और सारे अइमा के अहले इल्म का मजहब बयान करते हैं, तो सब जी। पर अमल किया जा सकता है आपके मुताबिक। एक मिनट से एक बात बोलेंगे। ये अभी जो आपने ये हुक्म लगाया कि इसमें धोखा दिया गया है, हाँ। ये किसकी रिवायत की है? मोहम्मद, ये तिरमिजी की थी। हाँ इमाम तिरमिज़ी, और ये कौन सी किताब है? वो इमाम तिरमिज़ी। तो फिर आपका ये मैंने ये समझ लिया आपने गलत इल्जाम लगाया। नहीं, ये बिल्कुल सही। देखिए अभी अरे आपको भाई यहाँ मिल सुनिए, रही है, अगर अभी यहाँ मिल रही है आपको। आप तस्लीम सुनिए, से झूठा इल्जाम लगाया। सुन रहे हैं? झूठा ये इल्जाम लगाया। रिवायत आपने हवाला दिया है। दिखाने बोल दो ना, सुना, क्या लिखा हुआ है। आपने झूठा इल्जाम लगाया। देखिए, तुमको दिखाना पड़ेगा। आप जब हद और इबारत पूरी चोरी कर रहे हैं, देखिए ये झूठा इल्जाम है। ये मुनाजरा के लिए दिया गया है। शेख ये मैं मुनाजरा करने के आपको लिए बता रहा हूँ किताबें ना, पूरी। पूरी मतलब ये बात धोखा देने के लिए दिया ये गया झूठा है। इल्जाम लगाया मेरा। फिर वही बात, जब साफ किताब में जिक्र है, छोटी यहाँ बात- आ रही ना। एक मिनट, कहाँ आ रही है? आपने तो लिखा ही नहीं। एक मिनट। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं एक्सेप्ट ना करता, एक मिनट जिया भाई, हाँ। आप हट जाओ, अली भाई को बिठाओ। नहीं ऐसा करो। अच्छा नहीं, एक मिनट तुम नहीं बोल रही है। अरे देखो मैं यहाँ तुम्हारे झूठा बोलने के पहले बाद बोला। पूरी सुनिए, तहकीक होने के बाद झूठा इल्जाम नहीं चाहिए था। लगा। यहाँ झूठा इल्जाम अरे, लगाया गया आप है एक हदीसों काम पे। करो, सुनिए। इनसे बात करो, इनसे। अली भाई सुनिए, देखिए दो बातें हैं। आपने पहले झूठा इल्जाम हाँ, लगाया ना, देखिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सच है। तो फिर ये क्या है? आप क्या लोगों हुक्म तो को- लगा रहे ना पढ़ सकते। क्या कौन कौन? तो हुक्म लगा रहे ना इमाम तिरमिजी की पढ़ सकते। सुनिए, इमाम तिरमिजी का हुक्म देखेंगे। अब देखिए आगे, यहाँ पढ़िए। हुक्म है कि नहीं? सुनिए आगे, ये तो आप इमाम तिरमिजी की सिर्फ हदीस नकल कर रहे हैं, हुक्म बता रहे हैं। इमाम तिरमिजी का हुक्म सुनिए, हदीस सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं सो सुनिए।
क्या अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युसल्ली रकअतैल फज्र, फज्र की 2 रकात जिसने नहीं पढ़ी। ना पढ़ी हो, आगे क्या है, फस्फल युसल्लिहिमा बादमा ततलु अश-शम्स, हाँ। उसको चाहिए कि सूरज निकलने के बाद पढ़े। ये भी इमाम तिरमिजी हदीस नकल कर, अब इमाम तिरमिजी का कौल देख रहे हैं और इमाम तिरमिजी हदीस नकल कर रहे हैं। यहाँ तो बोले कि सिवाय उन्हीं का अब कहना तो था। वो तशरीहात जो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीह कर तशरीहात, रहे हैं, आप मुकल्लिद तो नहीं है कि तशरीहात के कायल होंगे, आप हदीस के कायल हैं। आप जो मुहद्दिसीन अब आप जो सुनो बता रहे मेरी बात, नहीं, आप सुनो। मुहद्दिसीन जो हुक्म लगा रहे हैं, हाँ। तो मुहद्दिसीन की तो वो तशरीह जो जिस तरीके से आप ये कॉल पेश कर रहे हैं कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ये बता रहे कि ये हदीस सही नहीं, हमारे बता रही ऐसा ऐसा नहीं, तो इमाम मैं भी एक तिरमिजी- कॉल ये पेश कर रहा इमाम हूँ। तिरमिजी हदीस नकल कर रहे हैं ना हाँ। कि फल युसल्लिहिमा बादमा ततलु अश-शम्स, जब सूरज निकल जाए उसके बाद पढ़े, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसमें मन सुनिए मौलाना, हाँ बोलिए, बुखारी शरीफ की 1 नहीं 2 3 हदीसों को आप लोग झुठला रहे हैं। हाँ बोलिए, सुनिए, सही हदीस जिसमें कोई कलाम नहीं है, हाँ बुखारी और मुस्लिम में है, हाँ, बोलिए। नहीं का भी हुक्म है और ला सलाता का भी हुक्म है, हाँ। और सही हदीस होते हुए ये ज़ईफ हदीसों को आप हदीस दलील अब मैं बनाता बता है। दूं आपको, सुनिए, ये आप इंसाफ का खून कर रहे हैं। यार मैं बता दूं हाँ, आपको, बोलिए। कुरान में जैसे ये उमूम में खुसूसी जो बात आई है, कुरान में बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये उमूम खुसूस को आप नहीं मानते क्या? उमूम खुसूस है आपके यहाँ, हदीस में जिक्र है, कहीं दिखाएंगे आप? तो हदीस में ये जो आप सुनिए, हाँ। उमूम और खुसूस आप दिखाएंगे हदीस या कुरान में कहीं कि उमूम खुसूस पर अमल किया जाए और उमूम पर ना अमल किया जाए, उमूम पर अमल किया जाए, खुसूस पर ना किया जाए? तो अब जो ये तशरीहात को अब एक हदीस दूसरी मौलाना सुनिए, मैं सीधी बात बोलता हूँ, कर रही है, तशरीह कर किताब रही की है। इबारत नहीं पढ़नी आती है तो झूठ बोल के कहाँ? फलां नहीं। तो साफ इबारत साफ में नहीं बता पढ़नी आ रहा रही हूँ, है आपको अगर ये देनी, हाँ। आपको उस दिन भी बोला हाँ। कि अकल्ली पढ़ रहे थे, हाँ। इब्नुल हम्माम बोल रहे थे, बोलिए हाँ। आपको नाम लेना नहीं था, इबारत नहीं पढ़नी आती, क्या तशरीहात पढ़ेंगे आप हदीसों में? हाँ, तो या आप- आपने जो इतना बड़ा काम किया हाँ। कि हदीसुन सहीहुन लिख दिया हाँ जी बोलिए। 2 किताबों में, जबकि उसूल नहीं है दोनों किताबों में, मेरा ये दावा है, हाँ आपने धोखा दिया है। धोखा नहीं तिरमिजी दिया, कोई धोखा नहीं तिरमिजी में इस्नाद और हादिल हदीस लैसा मुहद्दिसीन है। तशरीहात लगा रहे, हुक्म लगा तशरीहात रहे, आप कहाँ मान रहे हैं? मुहद्दिसीन जो हुक्म लगा रहे उस हुक्म के बुनियाद पर मैंने लगाया, वही और आपने जाने सुनो, क्यों नहीं लगाया? इमाम बुखारी उन हदीसों को सेहत का हुक्म लगा रहे हैं, हाँ। इमाम मुस्लिम सही हुक्म लगा रहे हैं, हाँ। उनको आप छोड़कर और ज़ईफ के पीछे पड़े, वजह क्या? कहाँ ज़ईफ बताएंगे तब तो सही, ज़ईफ बताएंगे तब तो सही। अब किस तरह दूसरे तुरुक से जो बताया अब जा रहा है आपको सही। बताइए किस तरह बताया जाए। हाँ तो ये मुत्तसिल सनद इमाम आप बता सुन रहे लीजिए, हैं। हाँ इस बारे में जितनी रिवायतें सर हाँ। से पैर तक पेश करेंगे, सारी रिवायतों में कलाम है और सब में ज़ईफ रावी है। आप सेहत साबित नहीं कर सकते, अच्छा, आमद की सुबह तक नहीं साबित कर अच्छा, सकते। आपका जो अमल है कि फर्ज हमारा- नमाज के बाद हाँ, सुन्नत पढ़ा जाए। सुन्नत फर्ज नमाज की मौजूदगी में फर्ज नमाज नहीं, मौजूद हमारा है। हुक्म नहीं है, गलत आप तशरीह कर रहे हैं, जो भी कर रहा है गलत कर रहा अच्छा है। आप जो हमारा हुक्म नहीं है कि जमात खड़ी हो और वहीं पर सुन्नत पड़ी जाए, गलत है। आप धोखा देते हैं लोगों को। तो कैसे नमाज पढ़ते हमारा हुक्म यही है कि बिल्कुल अलग जगहों पर जमात के साथ बिल्कुल मुखालफत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुछ रिवायत की आप भी मुखालिफत कर रहे हैं। कैसे? ला सलाता नहीं जाओ कीमती सला फला सला या जैसे उनके मकतूबा। प्रति सलाह नहीं कि जब हाँ। नमाज की अहकामत कही जाए हाँ। तो वहाँ पर नमाज ना पढ़ी जाए, हम नहीं पढ़ते। कहाँ जहाँ की जगह की बात कहाँ की गई इसमें? ये जाओ कीमती सला जगह वो मकान के हमारा जगह कहाँ हुक्म है? नहीं है, साफ हमारा हुक्म यही है। टॉपिक चेंज हो रहा है। हमारा हुक्म यही कुछ है भी चेंज कि नहीं हुआ। जमात खड़ी हो जाए, जमात में शामिल हो जाए, वहाँ पर मुखालफत है फर्ज नमाज की, हाँ। सुन्नत पढ़ना या नफल पढ़ना। हम हदीस आप से ये साबित करे तो बताएं जरा कहाँ पे फर्जन फर्जन है हदीस से साबित पहले करें। ये बताओ सही कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, वो ये सब बाद टॉपिक में देखेंगे। वो बताएं आपने सही है। इतना बड़ा इमाम इल्म किया है मौलाना, आपका जो अमल है कि सही बुखारी में सही मुस्लिम में रिवायतें मौजूद सही हैं। हदीस मुस्लिम की मैंने आपको बताया। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अब तो सही बुखारी में सही मुस्लिम में मेरी उनकी बात है, तुम्हारी मेरी बात नहीं, तुम बीच में मत बोलो। देखो हम भी बोल सकते मैं क्या बोल सकते, लेकिन तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं सुनिए, है। जो बुखारी या मुस्लिम के अल्फाज हैं, ला सलाता बादा सलाती सुबह, सुबह की नमाज के बाद कोई नमाज हाँ, हत्ता तत्व है शमला। ठीक है। तो फिर ये आप जो है ज़ईफ रिवायतों को अपना करके इसको सही का हुक्म लगा के लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। भूल कहाँ क्यों ठोकेंगे? अच्छा, आपने बताया कि हदीसुन सही हूँ कहाँ है? हमको ये बताइए आपके हदीसुन सही अच्छा हूँ है ये बात तो क्या? आप मानते या नहीं? किस मानते? ये जो सजदा तैन का मैंने जिस रिवायत में वो मौजूद भी है। ज़ईफ है, इमाम तिरमिजी खुद कह रहे हैं हदीसुन गरीबुन। हाँ ये अगर इमाम तिरमिजी कहते हैं हदीसुन सहीहुन, हाँ हदीसुन हसनुन, हाँ। तो वो सही का हुक्म लगेगा। ये बात नहीं होती। आप सुनिए कैसे, हाँ। इमाम तिरमिजी का मिजाज और आप इबारत पढ़िए,
हाँ। अगर वो हदीसुन गरीबुन कहते हैं तो वो ज़ईफ हदीस है। इमाम तिरमिज़ी के देख लीजिए और सारी हदीसों में हदीसुन सहीहुन, हदीसुन हसनुन, तो वो हसन या सही होगी। हाँ। हदीसुन गरीबुन है अच्छा। वो ज़ईफ हदीस है। अच्छा। इमाम तिरमिज़ी इस बात के कायल हैं हाँ। और बाज़ाब्ता आगे की जो रिवायतें आपने पेश की हैं वो इबारत में उन्होंने कह दिया। अच्छा, वो जो रिवायत है सही इब्न खुज़ैमा की जो रिवायतें हैं और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की जो रिवायत है आप हाकिम के अंदर, सुनिए, हाँ इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हाकिम की इसी तरह कि हदीस नकल करने के बाद उन्होंने कहा होगा हदीसुन सही हूँ, दिखाएंगे आप? ये भी फरार है, सुन लीजिए कान खोल के। इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान और हाकिम की रिवायतों का ये लोग हवाला देते हैं और आगे लिखते हैं हादा हदीसुन सहीहुन। किसी भी इब्ने हिब्बान या इब्ने खुज़ैमा या हाकिम ने फर्दन किसी हदीस को हुक्म नहीं लगाया है, सिर्फ सही इब्ने खुज़ैमा नाम है, इसलिए आप कहते हैं हदीस सही है। तो फिर तमाम सही इब्ने खुज़ैमा की सारी हदीसों को सही मानना पड़ेगा और आप उसको नहीं मानते। नहीं, ऐसी बात नहीं है शेख। अब आप कैसी बात है इसको आप पढ़ाइए। आप लोग अगर सामने बैठते हैं तो नारा लगाते हैं, समझिए सारी बातें सामने आती हैं, वहां उठे, उसके बाद फिर अरे मौलाना मुनीम तो चुप हो गए, मौलाना मुनीम के पास तो जवाब ही नहीं है, अरे गलती हो गई हमने रिकॉर्ड नहीं किया। कर लीजिए रिकॉर्ड सब जितना करना है, हाँ तो ठीक लेकिन है ना। खुदा के वास्ते फरार मत कीजिए और झूठ मुजफ्फा मत फैलाइए। झूठ कुछ भी नहीं, आप जैसी बात बता रहे आप भी झूठ बोल रहे हैं एक तरीके हम से। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आपको, जिस हाँ। चीज में फर्क ना हो ये ये फर्क इल्जाम मत कीजिए। लगाया कीजिए आप। अच्छा भाई हाँ। देखिए पर्चे में हदीसुन सहीहुन है कि नहीं है, सब लोग देखिए आप खोल के देखिए हदीसुन सहीहुन है कि नहीं है? है? अबू दाऊद में नहीं है, आप देख लीजिए माना सहीहुन है, इब्ने माजा में नहीं है। अब ये देखिए ये किताब है कैनाब की किताब तिरमिज़ी में देखिए सही नमाज का लोकाल कैस इसमें कैस, उसके बाद पूरी एक लाइन इबारत देखिए खत्म। ये इल्जाम है ना, बीच में मत ये भी बोलिए। यार एक मिनट ये आप क्या मैं बताया बात अब हम देखा है बात चलो बात चलो देखो यहाँ पे साबित दूसरी तुरुक से किया जा रहा है लेकिन झूठा बोला जा रहा है। नहीं यहाँ देखिए वो भी ज़ईफ है, ये इल्जाम है। वो भी ज़ईफ है। देखिए आप ये मानेंगे, एक मिनट रुको यार, नहीं बात चलो वहाँ बात चलो आली वाली बात करो यार लेकिन ये इल्जाम है। नहीं हकीकत है। वाली बात मौलाना बिन सईद अन अबी अन जद्दी अन्नहु जा वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सलात अल-फज्र फसल्ला मअहु फलम्मा सल्लम क़ाम फसल्ली रकात अल-फज्र फक़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हातानि रकातान फक़ाल लम अकुन सल्लैतुहुमा क़ब्ल अल-फज्र फसकत फिर पढ़िए वलम यकुन सनद फिर पढ़िए। حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا اسد بن موسى الليث حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن ابي अब सुनिए वहीं रुकिए। हाँ यासद इब्ने मूसा हाँ जो जी। लैस की रिवायत कर रहा है, हाँ। ये लैस के दूसरे सारे शागिर्द ये बात नहीं नकल करते जो असद इब्ने मूसा नकल कर रहा है। मैं बता रहा हूँ ना इमाम आप सुनिए हाँ। और आगे बढ़िए। عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر. वो जितने सनद आप नकल किया ना जी, जी। उसी मैं- सनद सुनिए उसी हाँ। सनद को नकल करने के बाद इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये इमाम जो इमाम मुरसल इमाम है, दाऊद की सुनिए बात नहीं है ये। यहिया से आप नकल कर रहे हैं आगे, यहिया यहिया आगे नकल कर रहे हैं यहिया इब्ने सईद। हाँ यहिया ये कौन है यहिया इब्ने सईद? ये ताबई है। कौन है, किनके लड़के हैं, किनके भाई हैं? तो यहाँ पे बता रहे हैं ना पूरे तरीके से इमाम हाकिम का इबारा सुन लीजिए ना पहले तो। पूरा पढ़िए इसको, उसका तर्जुमा कीजिए। यहिया इब्ने सईद यहिया बिन सईद अन अबीही अन जद्दी, ये जो रिवायत है सुनिए, इस रिवायत में जो नकल करने वाला जो मूसा, ये असद इब्ने मूसा लैस से जो नकल कर रहा है हाँ। सिर्फ यही एक नकल करता है हाँ। लैस से, और दूसरे जितने रावी नकल करते हैं वो ये बात नकल नहीं करते हैं। बात हो गई ना। हाँ, बिल्कुल। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह क्या बता रहे हैं? हाँ। वलम यकुल शय्यन उस्तैस बिन फातल अंसारी सहाबीयुन व तरीक़ इलैहि सहीहुन अला शर्तिहिमा। और ये जो बता रहे हैं आप देखिए तो और बहुत सारी हमें देख लिया, मुझको मत दिखलाइए। हाँ, देख लीजिए। मैं आपको जो बहस सुना रहा हूँ सुनिए। हाँ, इस रिवाज को ये- आप मानेंगे या नहीं? नहीं इसीलिए बता रहा हूँ आपको वजह हाँ वजह बताइए। वजह बता रहा हूँ कि ये असद इब्ने मूसा जो अपने उस्ताद से नकल कर रहा है, हाँ। इस उस्ताद के और जितने शागिर्द हैं हाँ। ये बात नहीं नकल करते जो ये नकल करते हैं। तो ये नकल नहीं कर रहे तो आप ये जो बता रहे हैं कि ये हुक्म आप अपनी जानिब से लगा रहे हैं या कोई मुहद्दिसीन ये हुक्म लगा रहे हैं? ये सारे मुहद्दिसीन में आप पढ़ेंगे तो सब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे इमाम जो हाकिम रहमतुल्लाह अलैह जो बताए यहाँ पे, तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह तो सही का हुक्म लगा रहे हैं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तो अपनी सारी रिवायत को बता रहे हैं अला शर्तिहिमा।
समझ गए? हाँ हाँ इसी सारी तरह रिवायतों का नहीं लगाते थे, क्यों? सारी रिवायतों को तो नहीं लगाते। किस किताब का हवाला है? ये तो ये मुस्तदरक हाकिम की मुस्तदरक हाकिम कौन सी किताब है, आपको मालूम है? कौन सी किताब है बोलिए। अरे मुस्तदरक हाकिम वो किताब है कि जो बुखारी मुस्लिम की शर्त पर सारी हदीसें लिखी गई हैं। हाँ तो बोलिए। हाँ तो फिर आप कैसे कर रहे हैं कि तो सारी शर्त हदीसों पर को जब लिखा? लिखी गई तो वो तो तो जो है सुनिए, लिख तो दिया है हाँ। इन्होंने सारी शर्त पर, जी। लेकिन मुस्तदरक हाकिम खाली उनके कह देने पर मान नहीं ली जाएगी। आपने हाँ। एक दो नहीं, कई जगह उनकी रिवायतों को आपने ठुकरा दिया है। तो आप जैसे बता रहे थे कि क्या इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह सही का हुक्म लगा रहे या सही लफ्ज सही बता रहे हैं? इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह तो सही बता रहे हैं। क्या सही बता रहे हैं? वत्तरीक़ु बिइलैहि सहीहुन अला शर्तिहिमा। और तरीक़ को तो सनद को सही बता रहे हैं ना, हदीस को तो नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक मुहद्दिस एक सनद को बता सनद रहा तो है, सही। दूसरे कितने मुहद्दिसीन हैं जो उस पर नहीं मानते कि ये असद इब्ने मूसा अपने उस्ताद से जो नकल कर रहा है मसलन वो अपने और दूसरे साथियों से बिल्कुल खिलाफ नकल करता है, हदीस ये मरफू नकल कर रहा है, जबकि हाँ। ये मुरसल है। मसलन अभी आपको जैसे इमाम तिरमिज़ी और अबू दाऊद के दिया आपने, नहीं नहीं वो तो सनद छोड़िए ना, सही, ये तो मुत्तसिल सनद है ना। वही सनद है ना हाँ, जो नहीं, सनद आप नकल दिखाइए कर रहे दूसरी हैं। रिवायत, दूसरे जो शागिर्द हैं उनके वो दिखाइए। ये हदीस सही है ना, सही का हुक्म है वैसे। ये यही इब्ने सईद जो है ये साद इब्ने सईद का भाई है, ये तो ये जिक्र कर रहे हैं, हाँ। समझ गए? और इसी रिवायत को अबू दाऊद ने जो जिक्र किया है, देखिए सुनिए गौर से, जब अब दाऊद हुक्म लगा रहे हैं, बोलिए 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 ना। काला अबू दाऊद रवा अब्दुर रब्बी इब्ना सईदिन हादिल हदीस मुरसलन। क्या अबू दाऊद हुक्म लगा रहे हैं? अब बोलिए वो रिवायत वो अल्फाज और इस अल्फाज में आप देखिए, क्या वही अल्फाज यहाँ पे वो ला रहे हैं इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह, या कुछ अल्फाज की चेंजिंग के साथ, तब्दीली के साथ? भाई अल्फाज क्या है वो आप जानिए, लेकिन इस हाँ। हदीस को नकल करने वाले खुद ये जिक्र कर रहे हैं कि इस रिवायत को उन्होंने भी रिवायत किया। देखिए हाँ हदीस के अल्फाज में हाँ। एक लफ्ज इधर या उधर हो जाए तो उससे हदीस नहीं बदलती है। हाँ। एक रावी लफ्ज दूसरा रिवायत चलो। करता है, दूसरा रावी दूसरा लफ्ज पहले रिवायत से करता है। वो रिवायत अगर मुनक़ते मान ली गई, साफ लिख रहे हैं ये हाँ कि ये यहिया जो है जिनका नाम आप ले रहे हैं, हाँ ये इन्होंने इस हदीस को नकल किया है मुरसलन, यानी इस रिवायत को मुरसल सही है, हाँ। मरफू गलत है, जो कि असद इब्ने मूसा से रिवायत है। तो ये क्या बता रहे हैं कि इमाम तिरमिज़ी ये क्या बोलते हैं इमाम हाकिम हाँ तो रहमतुल्लाह अब आप सोचिए कि अबू दाऊद के सामने उनका क्या मकाम है, सो आप फैसला कीजिए। इनके बारे में यही बिन सही, तो ये तो सुदूक रावी बताया जा रहा है। भाई मेरे आप मैं बोल रहा हूँ ना हाँ। कि आप फैसला कीजिए ना। ये कह रहे हैं कि यहिया से जो रिवायत नकल करने वाले हैं वो मुरसल है, वो मरफू नहीं है। अगर ये बातें होती तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह सिहत का हुक्म क्यों लगाते थे? हाँ, इसलिए- आगे बता रहे वक़द रवा मोहम्मद बिन इब्राहिम अत्तैमी अन कैस बिन फाद। भाई मुस्तदरक हाकिम में ना रिवायतें मौजूद हैं कि जिसको आप नहीं तस्लीम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ बोलिए। हाँ इमाम हाकिम बड़े, अभी देखिए इमाम हाकिम ही उस तरह के हाकिम के अंदर जो है वो उलुल अम्र मिनकुम की तफसीर करते हैं, हाँ। समझ गए? हाँ बोलिए। अहल फ़िक़्ह व दीन, ये अहल फ़िक़्ह व दीन मुराद है, हाँ वही मुस्तदरक हाकिम के अंदर, लेकिन वहाँ आप लात मार देते हैं। अब मार देते आप सहाबी रसूल की बात को देखेंगे अब ना। आप सुनिए ना, हाँ। अभी आप मुस्तदरक हाकिम को पकड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन अबू दाऊद क्या कर रहे हैं वो आप सुनने को तैयार नहीं, दूसरे मुहद्दिसीन क्या रहे वो आप सुनने को तैयार नहीं। शेख वो जो देखिए सनद ये भाई मुनक़ते सनद रिवायत वही से है, साबित हो गई नहीं। यहया और सईद ये हाँ। जितनी रिवायत करते हैं ये मुरसल है। ऐसे आपकी बात मान ली जैसे कि ये सनद नकल करने के बाद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जो सनद ये कतब बता रही, इस वजह से वो बता रही कि ये मुनक़ते रिवायत, लेकिन इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह मुत्तसिल सनद रिवायत नकल कर रहे हैं, उनके बाद वो सिहत का हुक्म लगा रहे हैं। सही हदीस मुरसल है, हाँ। वो मरफू गलत नकल कर रहे हैं कि जब उनकी लिका सहाबी से साबित ही नहीं है तो फिर कहाँ से वो मरफू हो जाएगी? तो आप तो बताएं से कि क्या लेका साबित है ही नहीं इनकी। देखिए हाँ पढ़िए लेका आप। साबित है ही नहीं तो बताएंगे तब तो। भारत पढ़िए ना आप। नहीं तो ये बात तो मैं पढ़ा। हाँ कहाँ ये है बात तो यहया मैं इब्न पढ़ा। सईद? हाँ
यही बिन सईद अन अबीही अन जद्दिही अन्नहु अन जा अबीही हाँ अन अबीही अन जद्दी, अन जद्दी हाँ ठीक है हाँ बोलिए ठीक है। हाँ उनके बाप उनके दादा से, हाँ उनके बाप उनके दादा से दादा से हाँ बिल्कुल मुत्तसिल सनद रिवायत है। मुत्तसिल सनद रवायत कर दिया इन्होंने, लेकिन ये मुत्तसिल साबित ही नहीं है। आप बताएंगे तो आपकी बात थोड़ा मानी जाएगी। क्या रहा है? अबू दाऊद कह रहा है, इमाम अबू दाऊद जो यहिया रावी होने की वजह से इमाम अबू दाऊद बता अरे रहे हैं। भाई वो सनद जिसमें यहिया है, हाँ वो सनद तो पहले जो नकल किया उसको तो इनकता का हुक्म लगाई। दूसरी सनद हाँ कि इस रिवायत को और मुहद्दिसीन ने नकल किया है यहिया से, आप उसमें देखिए मोहम्मद इब्न इब्राहिम की जगह में यहिया है, समझ रहे हैं? हाँ यही बिन सईद है। हाँ हाँ तो इसीलिए इसी हाँ, इस बताया वजह से जा रहा है। कहते हैं कि हदीस सही मुरसल है, ये मरफू सही हदीस नहीं है। नहीं आप बता रहे हैं ना, आप किसका हुक्म बता रहे हैं वो तो बताएंगे। वो तो मुनक़ते रिवायत से नकल करने के बाद वो रिवायत नहीं, दूसरी नकल करने रिवायत। के बाद जो वो बता रहे हैं इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह भाई अलैह क्या कह रहे हैं मुरसल अबू दाऊद की इस रिवायत हाँ। को अब्दुर रब्बी ने हाँ और यहिया ने भी नकल किया है, और ये रिवायत जो यहिया से नकल की जाती है वो मुरसल है, साफ लिखा हुआ है। दिखाइए जरा फिर से। देखिए गौर से, ये देखिए सुनिए, किताब का नाम मिला ये देखिए काला अबू दाऊद इमाम में दाऊद कि रवा अब्दुर रब्बिही व यहिया, आया यहिया इब्ना सईदीन, सईद के दोनों बेटे हदल हदीस, इस हदीस को मुरसल रिवायत। तो अपने दादा से डायरेक्ट रिवायत कर रहे हैं ना इसमें, तो अपने इसीलिए दादा से रिवायत कर रहे हैं। यहाँ पे बाप का भी जिक्र आ रहा है, वही यहाँ पे बाप का भी वही जिक्र आ वो रहा है ना। समझाना चाहते हैं हाँ, कि वही रिवायत बात मुरसल है। है कि दादा से जो ये नकल कर रहे हैं इनके बाप का दादा से मुलाकात ही नहीं है, तब तो ये मुरसल हुआ। अब ये बात इस वजह से तो बता रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बाप दादा सबसे साबित कर रहे हैं। आप वही बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं यहाँ पे ये अन अबी ही अन जद्दी ही हाँ सिर्फ असद इब्ने मूसा ने नकल किया है। सही जो हाँ। इन दोनों बेटों से इनका जो रिवायत है वो मुरसल है, हाँ। अन जद्दी ही है, अन अबी ही नहीं है, यही समझाना चाहते हैं। नहीं नहीं तो इमाम आपको किताब की समझ ही नहीं है, समझ फिर से मदरसा जाइए आप पढ़ने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुदा की बोलता हूँ कि आपको अरबी इबारत नहीं पढ़नी आती है आपको, आप मदरसा जाइए और फिर से आप अरबी इबारत पढ़नी नहीं आती है। इतना बड़ा धोखा और फराड यार, छोड़िए ये सब। फराड यार क्या फराड। यहाँ तो आप इसका यहाँ पे बात सुनिए, इल्जाम लगा रहे हैं आप। सुनिए सिर्फ आप ये साबित करना चाह रहे हैं सुनिए। कि बदनामी और कुछ नहीं। सुनिए अभी वो मुरसल है, यहाँ पे देखिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनिए, बैठिए इधर बैठिए आप सुनिए, सुनो सही है ना भाई? अरे भाई कितनी बात की सही दलील सुनो बुखारी की मेरी बात सुनो तो आप सही। तुम्हारी कितनी दलील? अन अभी है अन जद्दी, अन अभी है अन अरे जद्दी। इनको नाम कमाना है, दुनिया को दिखाना है। बात करो बचने के बोल के बता रहा हूँ, फिर भी आप बोल के ही बता रहा हूँ। दादा से बता रही हैं, बाप से बता रही हैं। दादा से रिवाज नकल करने की वजह से इमाम अबू दाऊद मुरसल बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जितने लोगों ने रिवायत किया है मरफू, जितने लोग सुनिए हाँ। अन अबी अन जद्दी, ये हाँ। गलत है। गलत तो साबित करे तब तो। बोल रहे हैं कि ये मुरसल सही है, तो फिर बोलते हैं आप मुरसल रिवायत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह नकल की, इस वजह से वो मुरसल बता रहे। और यहाँ पे जो मुत्तसिल सनद रिवायत नकल की, ये अकल भी नहीं है आपको बोलना। अकल नहीं है, सुनो ना सब आप, कुछ सुनिए आप, सुनो। अच्छा उनको ये पढ़ाइए ना भाई, ये मैं पढ़ लिया अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आया हूँ मैं। तो यहाँ सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, गौर से सुनिए। अबू दाऊद एक रिवायत को नकल करते हैं, मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अन जद्दी अन कैस इब्ने अमर, हाँ। ठीक है, जी हाँ जी। मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अन कैस। ये तिरमिजी ने और मुहद्दिसीन ने हुक्म लगा दिया कि ये मोहम्मद इब्ने इब्राहिम का
लेका सिमा साबित नहीं है, रिवायत मुनक़ते हो गई। तो उस रिवायत को तो इन्होंने बात खत्म कर दी। अब उस रिवायत को अबू दाऊद जिक्र करने के बाद आगे जिक्र कर रहे हैं, ये जो हुक्म लग रहा है, सुनिए, ये जो हुक्म लग रहा है कि ये सनद मुत्तसिल नहीं है, इसकी वजह से मुनक़ते, ठीक है। इमाम अबू दाऊद आगे कहते हैं कि इस रिवायत को मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अन कैस इब्ने अमर के बजाय, गौर से सुनिए, सुनिए, उन यहया जो सईद के लड़के हैं, सईद के लड़के, सईद के जो लड़के हैं यहया, ये अपने बाप से, सईद से, और सईद अपने बाप से यानी कैस से मरफू रिवायत किया है लोगों ने, दोनों बेटों से, यहया से भी और अब्दुल रब्बी से ही, और सुनिए दूसरे और बेटे भी इनके, उनसे भी बाद मुहद्दिसीन है। और ये नकल करने के बाद कि ये रिवायत इनसे जो बेटों से नकल किया है ये मुरसल है, मरफू नहीं है। अभी ही अनजद ही नकल करना ये सही नहीं है, क्यों? ये मुरसल है। क्यों? आप सबक साबित करना पड़ेगा आपको। नहीं, आपको भी यहाँ पे साबित करना पड़ेगा से कि अगर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वो बात बताते कि हाँ ऐसा ऐसा अगर कोई नकल करे तो वो ज़ईफ है, लेकिन यहाँ पे तो इमाम क्या कह रहे हैं? सुनिए, गौर से सुनिए, आप फिर सुनिए, आप सुनने, आप गौर से सुनिए फिर क्या कह रहे हैं अबू दाऊद। अबू दाऊद क्या कह रहे हैं, सो गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए, काला अबू दाऊद, बोलिए बोलिए, रवा अब्दुल रब्बी व यहया इब्ना सईदीन, सईद के दोनों बेटे, सईद के दोनों बेटे, है ना, उनसे भी रिवायत की जाती है, नकल की जाती है, समझ गए। हादल हदीसा मुरसलन, कि ये हदीस मुरसल नकल की जाती है, मुरसल है, और जो मुत्तसिल नकल करता है वो गलत। और वजह असद इब्ने मूसा अनिल लैस, वहां पर दलील मौजूद है कि ये लैस के जितने शागिर्द हैं ये सब मुरसल ही रिवायत करते हैं, लेकिन असद इब्ने मूसा सिर्फ उसको अभी ही अनजद ही नकल कर रहा है। अच्छा, वो पेपर अपना जो लेके आए जितने दिए थे सोच के दिए थे ना पेपर में तो सही नहीं, 4 हदीसें इन्होंने दी थी, 4 हदीस की बहस करनी थी, बस समझ गए। पे लोग बराबर नहीं बना, ये 5 वो दे देते हैं। बात ये 4 पर साबित करनी थी। सनद की बात हो रही ना, नहीं सनद की बात अपनी जो बात हुई थी मौलाना से 4 हदीस दी उनने, 4 हदीस में अपने बात करने का जाकिर भाई ये बात थोड़ा, एक हदीस नकल की इन्होंने अबू दाऊद से और लिख दिया हदीसुन सही, अबू दाऊद में नहीं है। दूसरी हदीस निकल के इब्ने माजा से लिख दिया सही हूँ, इब्ने माजा में भी नहीं है, साफ साफ सुन लीजिए। तीसरी हदीस इन्होंने की तिरमिजी से, देखिए वयुकाल हुआ कैस, के बाद पूरी एक लाइन है उसको उड़ा दिया, कैस इब्ने फहद इस्नाद व हादल हदीस लैसा भी मुत्तसिल, समझ रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल रहमान, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल रहमान लम यस्मा, साफ कहते हैं हम कैस इब्ने अमर, ये पूरी इबारत इन्होंने तिरमिजी से उड़ा दिया, आधी नकल करके भेज दिया। अब बताइए ये इंसाफ का खून करना है कि नहीं? अभी जो हदीस है वो ये सनद मुत्तसिल नहीं है, मुनक़ते है, और मुनक़ते हदीस ज़ईफ़ होती है। इन्होंने एक जगह नहीं 3 जगह लिखा है, अपनी किताब में लिखे हुए 3 जगह लिखा है मुनक़ते हदीस ज़ईफ़ होती है, और ये भी लिखा है कि ज़ईफ़ हदीस से दलील पकड़ना है, ये इंसाफ का खून करना है। तो बताइए कि ये इंसाफ का खून करना है ये हक बताइए। फजर की नमाज के बाद सुन्नत अगर बाकी रह जाए तो उसको फर्ज के बाद फौरन पढ़ लेना, ठीक है ना? आपका भी यही कहना है, हमारा ये कहना है कि बुखारी मुस्लिम में सही हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीसों में तो नहा कहा है, कि रोका है, समझ गए, हत्ता तत्व शम्स, यहाँ तक कि सूरज निकल जाए। और एक हदीस में ला सलाता, कोई नमाज नहीं है बादा सलाती सुबह की नमाज। तो इस बिना पर हमारा ये मसलक है कि सूरज निकलने के मगरूब के वक्त बाद। अच्छा, आप नमाज पढ़ा रहे हो, सुनिए, बात हो चुकी है तो आप कहना चाहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ अपने समझ के लिए, वो बात नहीं समझ रहा। अरे मैं क्या सवाल इन लोग ने कर लिए, हमारे किसी किताब में नहीं है कि जमात पढ़ी हो और वहाँ पर सुन्नत पढ़े, नहीं, गलत है। पढ़ना चाहिए भाई, अभी जो हदीस
जो हदीस बेहतर दिए थे क्या था, नहीं, सिर्फ इतनी नहीं, बात हाँ, बताने बात मकसद को थी पलटा जो दिया। हदीस में नहीं है बात को उसमें पलटा लिख दिया। बात को लिख पलटा दिया है, दिया। और जो हदीस हाँ, और जो हदीस की किताब में जी उसको इन्होंने निकाल दिया, बस इतनी बात थी और कुछ नहीं। यानी ये हदीसों में निकाल दी नहीं, अगर हनी भाई से बात किए होते तो सनद के साथ बाकायदा मैं रिवायत देता। सनद तो आपने दिया का मुतालबा क्या? रात में 11 बजे आए, नहीं जाने का टाइम नहीं वो बोले मेरे को अखबार हदीस वगैरह से सारी आने दो। बातें हैं? देता मैं। अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अच्छा मैं रात में 11 बजे लेने आया, इनने मेरे को गलत अच्छा दिया। एक तुम्हारी तहकीक है। मिनट रुकना भाई। नहीं तुम मत बोलो, मैंने तुम्हारे से बात ही नहीं है। हाँ भाई भाई सुनिए अगर मैं उसको खत्म कर देता अगर नहीं बोलता अगर तो मैं लेट आऊंगा तो ठीक है, आपको गलत हदीस सुनिए देंगे। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, गलत माने क्या सुन्नत का हदीस एक्सेप्ट कर लिया आपने, मैं तो गलत नहीं सही समझा। जाने ज़ईफ को ले हाँ, गए। सुनिए आप चुप रहिए, हाँ, आप अच्छा, सही हदीस पे हम एक मिनट अरे यार अली भाई इधर आ यार अली भाई बोलते बैठिए यहाँ पर। हाँ हमारा नहीं इनका कौन है, हबीब साहब का ये देखो, ये तो मुत्तसिल साथ पेश कर रहा अब है। आप सनद तो पेश कर रहा है। एक मिनट। सुनिए आप मुत्तसिल रिवायत में पेश कर रहा हूँ। ये आप रिवायतों पर खरे नहीं उतरे, आपका ये इकरार है ना, बस। हाँ बिल्कुल हाँ। ये रिवायतों पर आप खरे नहीं उतरे, सही है ना, वो रिवायत मैंने जो पेश किया जल्दी में पेश कर दिया आपने, मैं पेश कर दिया रिवायत, जल्दी में जल्दी रिवायत गलती हो गई, हाँ तिरमिजी की इतनी इबारत छूट गई या उसमें सही लिख दिया। हाँ अब आप दोबारा हाँ जितनी दलाइल हो आपके सनद के साथ बिल्कुल सही हाँ। आप लिख करके आओ। हो गया। ठीक है, चलिए। लेकिन आपकी कोई दलील ये नहीं, आप इल्जाम आपका ये नहीं, गलत अरे है। यार। मैं हाँ। अभी भी दे रहा हूँ हाँ, अभी कि इल्जाम आपने बिल्कुल साबित नहीं सुनिए, कर सकता। मैं इल्जाम अभी भी दे रहा हूँ चलो। कि हाँ। एक जगह गलती होती तो गलती मानता हूँ, हाँ। दो दो तीन तीन जगह में आप चार चार जगह में गलती कर रहे हैं, यही फिर सुनिए इस रिवायत को आप ठुकरा रहे हैं। अरे मुत्तसिल सनद जो मैं रिवायत नहीं ठुकरा रहा हूँ, हाँ मैं नहीं ठुकरा रहा हूँ, कौन ठुकरा रहा है? अबू दाऊद जैसे मुहद्दिस कह रहा हाँ, है तो इसमें भी कि ये मुरसल है और मुरसल मुहद्दिस है। अच्छा इनको मुहद्दिस नहीं मानते अरे सुभान टॉपिक अल्लाह। भाई क्यों नहीं मानेंगे भैया, तो फिर इनकी तो आप इमाम बुखारी को नहीं मानते, बिल्कुल मानते ना इमाम मुस्लिम को नहीं बिल्कुल मानते, मानते। फिर उनकी हदीस पर क्यों नहीं हमारे आप आप ही सही हदीस। अच्छा एक मिनट सही हदीस है आप इस मौजू पर बात कीजिए, इसी मौजू पर आप बात कीजिए। टॉपिक चेंज होगा। ईद की नमाज है टॉपिक चेंज होगा। ये भाई